हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम बायोलॉजी 10 क्लास में चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। लेट अस स्टार्ट विद द टर्म मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मास कल्चर here means production at a large scale. The meaning of fermentation was first considered the use of microorganisms for the production of foods like cheese, yogurt, pickles, sausages, and etc. and other products like beverages and spirits. While in biotechnology, the term fermentation means the production of any product by mass culture of microorganisms. बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जाता है बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट अस सी वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन की जा सकती हैं। लॉन्ग विद फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द फर्मेंटेशन। फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस के साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स को भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है। अब वो कौन सी फर्मेंटेड फूड्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन की जाती हैं, लाइक सीरियल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, fruit and vegetable products, then beverages products and industrial products. First of all start करते हैं fermented foods के साथ। Fermentation makes food delicious, nutritious and digestible. Fermentation के process के through obtain की जाने वाली fermented foods के taste को enhance किया जाता है, इसकी nutritious value को increase किया जाता है and they are easy to digest. It also tends to preserve the food and lowers the need for refrigeration. Refrigeration के बगैर इन फर्मेंटेड फूड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्पॉइलेज, लाइक मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल एंड एक्सेट्रा। नंबर 1 पे देखते हैं सीरियल प्रोडक्ट्स। ब्रेड इज अ कॉमन टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट। Saccharomyces cerevisiae and lactic acid bacteria are used to ferment the wheat dough. फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट्स में ब्रेड मोस्ट कॉमन टाइप है। इस ब्रेड को बेक करने से पहले इसकी डो को फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू रेज किया जाता है, जिसके लिए Saccharomyces cerevisiae जो कि एक यीस्ट है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, which make the bread more delicious and nutritious. Next are the dairy products. Fermented dairy products are yogurt and cheese. Yogurt is made from milk by different lactic acid bacteria, while during cheese formation, when lactic acid bacteria produce acid and react with milk protein, it is coagulated. Cheese formation के वक्त मिल्क में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से इसमें मौजूद प्रोटीन में कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच मीन्स के जिसमें लिक्विड फॉर्म से मटेरियल एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इससे हम चीज ऑब्टेन करते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड यूजिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम मिल्क से डिलीशियस प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट और चीज वगैरह को ऑब्टेन कर सकते हैं। Next are the fruit and vegetable products. Fermentation is used along with salt and acid to preserve in the form of pickle like fruits and vegetables. Fermentation के process के through fruits and vegetables को preserve किया जाता है। So in the form of pickle इनमें मौजूद acid और salt इनको spoil होने से बचाते हैं and इसमें मौजूद lactic acid इसके taste को enhance करता है and make it more nutritious and delicious. Next are the beverage products. Fermentation is used to produce beer and wine from grapes and from cereal grains. Fermentation के process के through beer और wine भी बनाई जा सकती है, like grapes से भी तैयार की जाती है, इसके अलावा cereal grains से भी। Well, grapes can be directly fermented by yeast to wine. Grapes में yeast को use करके fermentation के process के through direct wine में convert किया जा सकता है। How beer is produced from the process of fermentation. To produce beer, cereal grains have been malted, dried and ground into fine powder. Malted here means जिसमें cereal grains को water में soak किया जाता है इतने वक्त के लिए कि उसके seeds में germination start हो जाती है। Then उनको पानी से निकाल कर dry किया जाता है और फिर पाउडर की शक्ल में ग्राइंड कर दिया जाता है। Then इस पाउडर में yeast ऐड करके fermentation की जाती है और इस तरह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड में और फिर एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफरेंट काइंड के केमिकल्स को भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, लाइक फोमिक एसिड, एथेनॉल, ग्लिसरॉल एंड एक्रिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ फोमिक एसिड। एस्परगिलस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं दे आर एस्परगिलस। एस्परगिलस जो कि एक टाइप की फंगस है।
अब देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड के यूजेस क्या हैं। फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल डाइंग, मींस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंगने के प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। लेदर ट्रीटमेंट, रबर मैन्युफैक्चर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल की सरफेस पर दूसरी मेटल की कोटिंग की जाती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह की। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एथेनॉल। एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, दे आर सैक्रोमाइसिस। Saccharomyces are the microorganisms used for the production of ethanol. अब ये ethanol के uses क्या क्या हैं? They are used as solvent, production of vinegar and for the beverages. Ethanol को universal solvent कहा जाता है because ethanol में बहुत सारे organic compounds को जो कि water में dissolve नहीं होते, आसानी से dissolve किया जा सकता है. So that's why it is used as the solvent. Next is the glycerol. Saccharomyces are the microorganisms used for the production of glycerol. अब ये glycerol के क्या क्या uses हैं? Glycerol is also used as solvent, production of plastics, used as sweetener in printing and cosmetics and soaps industry. Glycerol को as a sweetener use किया जाता है, मतलब मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, because common sugar की निस्बत इसमें कैलोरीज कम होती हैं। At the end देखते हैं the production of acrylic acid. Bacillus are the microorganisms used for the production of acrylic acid. Acrylic acid की प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, they are the bacillus which are the rod shaped bacteria. अब acrylic acid के क्या क्या uses हैं? They are used for the production of plastics, used as sweetener and in the printing. Well, acrylic acid को प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए स्वीटनर के तौर पे भी यूज किया जाता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। हमने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड, बेवरेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स को किस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।